And if there is one cricketer who has always played on his own terms, it's our next speaker. Fearless on the field and now fearless in his choices. Please join us in welcoming Mr. ICC himself, Shikhar Dhawan, as he takes us beyond the boundary and into his next chapter with Navika Kumar. It has to be a little louder, otherwise how will he come to the stage, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen, I think we can do better than this. Shikhar Dhawan in our midst. Big round of applause. Thank you very much, Shikhar. Thank you so much. Good evening, everyone. Shikhar Dhawan, is he only about cricket, or is Shikhar Dhawan now a mentor, somebody who's doing many things, giving back to cricket and also pushing new boundaries? How do you see yourself today, Shikhar Dhawan? There's unlimited possibilities in the world, and of course I had a great career in cricket, and I recently retired 8-9 months back, and yeah, I am a very visionary person, and like to think big and make it big as well. And now, as you said, that of course I have vast experience as a cricketer, so I like to pass on that knowledge to the youngsters, and at the same time building up new business for myself, for my team, and yeah, playing in big numbers. I like to play in big numbers. Yeah. Big numbers on the scoreboard, and now big numbers in business? Yes, absolutely. Why not? If by the grace of God, I like to see that. I like to manifest that thing as well. How I have manifested playing for Indian team and making world records. I know that art of turning my dreams into reality. I will surely use that art to build a big empire as well. Big empire, okay. But let's start at the beginning. Shikhar, bachpan kaisa tha? How big was the struggle before you became the hero of India? You know, everybody saw Shikhar Dhawan aa raha hai pitch pe, to boss छक्के चौके छोड़ेगा. पहले शुरुआत कहाँ से हुई? Bachpan, my childhood, I come from a very middle class family. I used to live in Vikaspuri in MIG flats, and I was good in sports. I loved playing sport, like used to play cricket or football, even kho-kho, gallery with girls. So I played all that stuff at home, and yeah, and I wasn't very good in studies. I never liked studying that much, so I used to spend most of my time on the ground with my colleague friends, and from there I joined Sonnet Club, and that's how my journey started. So first, when I clearly remember when I went for under-14 trials, first time I didn't got selected. When I was coming back in the car, I was crying that I didn't got selected in 60 boys, and still I kept on going and practicing, and then things started working for me. I played for under-16, then under-17 Asia Cup, then I played under-19 for state level, for Indian under-19 World Cup as well. Became man of the tournament in under-19 World Cup, and then it kept on growing. तो जब पढ़ते नहीं थे और हमेशा खेलों में दिल लगा रहता था, घर पे डांट नहीं पड़ती थी? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल डांट पड़ती थी. उस वक्त पे पिटाइयाँ भी बड़ी नॉर्मल थी, तो पिटाइयाँ भी हुई हैं, प्यार भी बड़ा मिला है, तो सारी चीजें बैलेंस में थी. उस वक्त पिटाइयाँ नॉर्मल थी, आजकल तो बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते. हाँ जी, आजकल नहीं लगा सकते, और लगाना भी नहीं चाहिए हाथ. मेरा ये मानना है कि वो इंसान की कमजोरी है कि वो अपना गुस्सा हैंडल नहीं कर सकता, तो वो एक बच्चे पे या किसी पे भी हाथ उठा रहा है, और अगर उनको अपने गुस्सा ही नहीं कंट्रोल में आता तो फिर दैट्स वाई वो करते हैं. उससे क्या होता है कि अब जैसे मैं जब सोचता हूँ उस चीज़ को, तो मैं तो खैर नहीं करता वो, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठ गई ना कि मारना नॉर्मल है, या हम जब बात भी करते हैं कभी, जैसे इंडियन कल्चर में हमारा है भी कि भी गुस्से में भी बात कर जाते हैं, और
हम यूज टू भी हैं उस चीज़ के, तो वो सारी चीज़ें लेकिन मेरे हिसाब से लो वाइब्रेशनल स्टफ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सिस्टम से उसको इरेज कर दूँ। शिखर धवन जो जाता है और बॉल आती है ऑपोजिट साइड से दूसरी टीम के एक खड़ूस से बॉलर से, हुएवर ही इज, बट हम इंडिया को सपोर्ट करते तो हमें दूसरा साइड वाला हमेशा खड़ूस ही लगता है कि ये कैसी बॉल दे रहा है। तो तब भी वाइब्रेशंस और ये मैनिफेस्टेशन और ये सब चलता था दिमाग में? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी बाद में आई है। ये मतलब मैनिफेस्टेशन तो देखिए, जब मैं छोटा था तब फील करता था कि इंडिया के लिए खेलना है। जब मैं 12-13 साल की बात कर रहा हूँ या 14-15 की भी, क्रिकेट खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है। फिर एक स्ट्रक्चर पता लग गया मुझे कि मैनिफेस्टेशन को और कैसे तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, यूनिवर्स की एनर्जीज को कैसे मैं अलाइन कर सकता हूँ, एक डिवाइन एनर्जी को कैसे मैं अपने थ्रू फ्लो करा सकता हूँ। तो वो मेरे को जब वो स्ट्रक्चर पता लग गया, देन जो मेरा सक्सेस रेट था वो काफी हाई चला गया। एंड बिल्कुल I visualize, I used to see myself hitting ballers out of the park, dominating them in that game and winning lots of trophies, making world records. Even when I didn't play for Indian team, I used to see myself playing for Indian team and making world records. So as a youngster, that's what I tell youngsters as well. जब आप mentorship की बात कर रहे थे, तो मैं youngster को ये बोलता हूँ कि अगर 4 youngsters आए हैं इंटरव्यू देने, तो वो चारों के स्किल अच्छे हैं, पर एक ही सिलेक्ट होगा। वो क्यों होगा? उसमें एक्सपेक्टर क्या है? वो उसकी सोच है। अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, उसमें वो विश्वास है, सेल्फ बिलीफ है और बड़ा सोचता है, पॉजिटिव सोच, तो वो बंदा ही आगे जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट, माइंड ओवर मैटर। मेरे को थोड़ा मैनिफेस्टेशन सिखा दो कैसे करना। यहाँ सब सीखना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन कैसे कर। एवरीबडी वांट्स टू नो, थोड़ा सा एक डेमो। आई एम श्योर यहाँ पे सारे एस्टैब्लिश्ड लोग आए हुए हैं तो उन्होंने बिल्कुल किया होगा। एंड अगेन सी, व्हेन यू वांट थिंग, आई विल टीच यू एज यू आस्क्ड मी। व्हेन यू वांट थिंग, व्हेन यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, लाइक ओके यू वांट अ स्पोर्ट्स कार और अ मैंशन, you want it because you don't have it, that's why you want it. Where else when you want to manifest something, you feel that you already have it and enjoy that in your mindset, in your subconscious mind, because our subconscious mind doesn't know रियलिटी में कुछ है या है नहीं, वो बस उस फ्रीक्वेंसी पे फील करता है। सो आई ऑलरेडी फील दैट आई ऑलरेडी हैव दीज थिंग्स एंड आई देन ट्रस्ट एंड सरेंडर टुवर्ड्स नेचर एंड आई नो दैट नेचर विल ब्रिंग इट टू मी। बट ऑफ कोर्स दैट इज जस्ट माइंड सेट, बट एट द सेम टाइम आई डू दैट skill or that work towards that particular thing, and then I go it with all the angles and attract that thing rather than chasing it. अच्छा, attract it rather than chasing it. What a beautiful line. ये थोड़ा शाहरुख खान के डायलॉग की तरह नहीं है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात जुट जाती है आपकी समथिंग पूरी करने के लिए? बिल्कुल जुड़ती है। जुड़ती है? जोड़ने वाला चाहिए, बिल्कुल जोड़ने वाला चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल जोड़ने वाला कौन है? शिखर धवन। हाँ बिल्कुल हूँ मैं अपनी लाइफ के लिए आई लाइक टू क्रिएट माय ओन लाइफ एंड माय डेस्टिनी। यस, व्हाई नॉट। सुपर्ब। शिखर, आई वांट टू आल्सो आस्क यू कि बचपन में जो मार पड़ती थी वो मम्मी से पड़ती थी या सबसे पड़ती थी? मुझे मम्मी से भी पड़ती। मम्मी की मार तो पता ही नहीं लगती थी क्योंकि पापा का हाथ इतना भारी था। तो पापा से बड़ी पिटाई पड़ी है, पापा से डर लगता था मुझे ज्यादा। मम्मी की पिटाई पे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता था। स्कूल टीचर्स, कोचेस, अब मेरे पेरेंट्स ग्राउंड पे नहीं जाते थे मेरे को मैच देखने के लिए, तो अब दूसरों के पेरेंट्स आते थे तो वो बच्चे वो नहीं अच्छा करते थे, मैच हारते तो उनकी पिटाई भी मेरे पल्ले आ जाती थी। तो ऐसा भी हुआ है। तो या that was normal that time. And ऐसा भी हुआ कि मैं अपने कोच साहब से गुस्सा हो गया और छोड़ के चला गया मैच, कि मैं अगले दिन मैच नहीं खेलने गया। And then he realized and he came up to me and said कि भाई आजा मैच खेलने चल वापस। तो जब आप सिलेक्ट हो गए अंडर 16, अंडर 19, ये सब, पेरेंट्स खुश हुए? बहुत खुश हुए, पेरेंट्स बहुत खुश हुए। तो जब कोई टोटके भी करती थी मम्मी, टोटके करती थी कि आज जा रहा मेरा बेटा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो यही शर्ट पहन के दही से मीठी चीनी के साथ दही खिलानी या नजर उतारनी, वो सब मम्मी ने मेरे बड़ा किया है। अभी भी करती हैं कभी कभी। और हाँ जी, अब क्योंकि वो एक माइंडसेट
बने हुए हैं, पहले से चीजें चली आ रही हैं कि भी नजर लगती है, तो उनके वो सोच है वैसी, तो बिल्कुल। शिखर, जिंदगी में चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्रिकेटिंग करियर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। आप एक हमेशा एज पे रहते हो, आपको पता होता है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो गई अच्छी तो आप बाहर हो सकते हो, और आप कई बारी टीम में सिलेक्ट नहीं होते, प्लेइंग 11 में सिलेक्ट नहीं होते। तो क्रिकेट इज मोर अबाउट हैंडलिंग फेलियर्स देन हैंडलिंग सक्सेस। एंड इवन आप इनिंग्स खेल रहे होते हो तो आप ऐसा नहीं होता कि हर मैच में ही 100 बना रहे हो, तो आपको कैसे वो डिसअपॉइंटमेंट्स को प्रोसेस करना है, उसको कैसे चैनलाइज, उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करके आपको पॉजिटिविटी में क्रिएट करना है, एंड देन स्टिल कीप ऑन डूइंग द प्रोसेस एंड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो वो सारे चैलेंजेस रहे हैं लाइफ में, एंड उनसे उभर के अगेन आगे बढ़ते रहे हैं और चीजें अचीव करी हैं लाइफ में। कंपटीशन विद इन द टीम भी होता होगा, आई एम श्योर, हर टीम में होता है, वेर एवर यू आर वर्किंग और वट एवर यू आर डूइंग। विद इन द टीम का कंपटीशन और पॉलिटिक्स, वो कितना स्ट्रेस करता है? किसके टीम का? विमेन विद इन द टीम? विद इन द टीम, एब्सोल्युटली। पॉलिटिक्स होती है? अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। कंपटीशन होता है, मैं ये पहले भी कई बार बोला कि कंपटीशन अगेन विद इन द टीम भी होता है। जैसे मैं ओपनर रोहित के साथ है, केएल के साथ है, क्योंकि एज ओपनर मैं ओपनर्स के साथ ही कम्पीट करूंगा, और उसमें सीखने वाली चीज ये है जो मेरे लिए रहा, मैंने आखिरी 6-7 साल में जो मैंने चेंज करा, शिफ्ट किया, वो ये था कि भाई अब आप जब कंपटीशन कर रहे हैं अपनी टीममेट से, तो वो आपके दोस्त भी हैं, और आप जब कंपटीशन करेंगे तो आप कंपैरिजन करेंगे उनसे हमेशा कि अच्छा उसके इतने रन है या मेरे इतने रन है, मेरे उससे ज्यादा हो जाए, भगवान उसका अच्छा होता रहे, मेरा और अच्छा हो जाए। ये बड़ा कॉमन थॉट रहा है। जब आप कंपैरिजन करते हैं देन एंड प्रोडक्ट जेलेसी आएगी, नो मैटर व्हाट। तो आप चाहे जितने मर्जी अच्छे 200 compete करेंगे अपनी टीम के मेंबर्स के साथ, तो जेलेसी वो आएगी आएगी। वेयर एल्स I shifted my focus from competition to contribution. So I thought that, again, I learned it through spiritual talks. And then I shifted my mindset. I was like, okay, I'm going to come and contribute my best. Whatever my best in me, I'll just give that thing. And I became so light in my life. Then competition went off from my system. And even in my team, my current team, I promote that holistic approach, where I tell them that, we don't need to compete with anyone. The competition is within yourself, how to get yourself better, how to raise your frequencies rather than competing with someone else. It's not worth it. Of course, you have to compete with other team and use all the strategies and play with their mind, get into their mind and get them to what you want them to do. For sure, I've done that and I still love to do it. And but within the team, it's not worth it. वो तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आप गुरु शिखर धवन बन गए हो या बाबा शिखर धवन। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कंपटीशन, जेलेसी इज पार्ट ऑफ रियल लाइफ ना। मेंटोर का मतलब वही तो होता है। नहीं, मैं अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं हूँ सवालों में। मैं अभी तो तब की बात कर रही हूँ जब आप टीम में थे। वर देयर पीपल पुलिंग यू डाउन? नहीं, मैं टीम की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैंने compete किया अपने टीम के प्लेयर्स के साथ, एक लेवल तक किया, उसके बाद मैंने वो चीज़ छोड़ दी। पिछले 5-6 साल मैंने compete नहीं किया किसी के साथ, और मेरा जो सक्सेस रेट था, कंसिस्टेंसी थी, वो काफ़ी हाई होगी। चलिए, आपने नहीं किया, किसी ने आपके साथ किया? किसी ने तो क्यों होगा, तो क्यों होगा, बिल्कुल क्यों होगा, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग हैं। तो अब इंसान अपनी सोच से ही चलेगा, जहां पे भी होगा तो वो करेंगे तो अच्छी बात है। वो 3 इडियट्स में एक डायलॉग था कि अपना दोस्त अच्छा करे तो बड़ी अच्छा भी लगता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए और हम थोड़ा पीछे रह जाएं तो बड़ा ही दुख होता है कि और कोई आ जाए, दोस्त ना आए। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? ये ऐसा बिल्कुल हुआ एक्सपीरियंस, क्यों नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला कि जब मैं compete कर रहा था तो यही एक्सपीरियंसेस होते हैं, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आप वो करेंगे नहीं तो आपको इससे बेहतर कैसे पता लगेगा कि और आगे क्या चीजें हैं, उसके और भी तौर तरीके हैं। सबसे ज्यादा किससे compete करते थे? मैं तो एक ओपनर्स के साथ ही compete करूंगा।
और कंपटीशन किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो आपकी सोच है ना, आप किसी से भी compete करना शुरू कर सकते हो। वो जरूरी नहीं कि ओपनर हो, मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ कि अगर किसी मेरा ऐसा हो सकता है कि यार उसको 10 ब्रांड मिल रहे हैं, मेरे को 5 ब्रांड है, तो मेरा कंपटीशन वहां पे भी हो सकता है, स्कोर के रन्स के प्रति भी हो सकता है। तो हर चीज की वो एक पैटर्न है, अगर वो पैटर्न आपके माइंड में है तो वो पैटर्न हर किसी के हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आप इतने फिट हो, you don't look like you've ever been out of the team, you can still play good cricket. छोड़ा क्यों इंडियन टीम? इंडियन टीम क्यों रिटायर किया? क्योंकि मेरे को लगा कि मेरा टाइम आ गया जाने का, और अब मेरे को पता था कि मेरे इंडियन टीम में चांसेस नहीं आने के। एक जितना मैंने खेलना था वो खेल लिया, और एक जब आप उस फील्ड में होते हैं तो आपको रियलाइज हो जाता है कि अभी अब चांसेस कम है। एंड आईपीएल टू आईपीएल मेरे पास 1 साल का गैप रहता था, तो उसमें मेरे मैचेस नहीं थे इतने। तो आईपीएल भी इट्स अ वेरी हाई प्रेशर लीग, एंड उसके लिए रवा रहना जरूरी है, मेरे मैचेस होते रहना। तो मेरे को लगा कि अब मैं एक क्या कहते हैं, एक तगड़ा हिस्सा नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए बेटर है कि मैं रिटायर हो जाऊं और दूसरी इतनी सारी चीजें लाइफ में करने के लिए तो वो करूं। You're a fighter. For sure, I'm a fighter. तो छोड़ क्यों दिया? Circumstances ऐसे थे या आप कह रहे हो कि नहीं छोड़? देखो, of course I'm a warrior, and you should know when to let go things. It's no point holding things too strongly. You should let it go and let it go gracefully. That is the sign of a warrior for me, to let things go gracefully. Thank you. Whatever potential I had in me, I brought it out through cricket, and I'm very, very content and very happy whatever I have achieved in cricket and where I'm standing in life. कोई ऐसे फ्रेंडशिप्स जो तब बनाई थी टीममेट्स के साथ, जो आज तक दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ? हाँ जी, हाँ, विराट के साथ काफी मेरी चैटिंग हो जाती है, रील्स शेयर करते रहते हैं हम दोनों, सेंस ऑफ ह्यूमर सेम सेंस ऑफ ह्यूमर है काफी। तो इज इट अबाउट दिल्ली बॉयज के सेंस ऑफ ह्यूमर? दिल्ली बॉयज हो गए तो पंजाबी तो है ही हैं दोनों, तो फिर हंसी मजाक चलता रहता है। और रोहित के साथ बड़ा प्यार है, चहल के साथ है, हार्दिक, कुलदीप, सबके साथ है, खूब प्यार है सबके साथ। रोहित शर्मा and team just won the Champions Trophy after many years. पहली ट्रॉफी आपके साथ आई थी, लेकिन लोग ऐसे कह रहे थे, there were politicians who were commenting and saying Rohit is so fat. इस तरह के comments, how do players deal with it? प्लेयर के कान में जू भी नहीं रेंगती। फर्क ही नहीं पड़ना, पढ़ते नहीं हो या कोई बताता नहीं है, या यू डोंट केयर? पहली चीज, जब इंसान बात करता है तो वो अपनी सोच दर्शाता है। तो जिन्होंने वो बात बोली उन्होंने अपनी सोच दर्शाई है कि भाई उन्हें लगता है कि भाई वो फैट है, या वो इन चीजों में बिलीव करते हैं। दूसरी चीज, आप जब एज अ सेलिब्रिटी, एज अ क्रिकेटर आप लाइफ जी रहे होते हैं, तो थिक स्किन तो होना पड़ता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होएगा। आपको गालियां भी पड़ेंगी ऑनलाइन, तारीफें भी होंगी, तो आपको यूज टू होना पड़ता है। एंड अगेन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, कौन कितना थिक स्किन है, किसी को इफेक्ट भी करता है, किसी को नहीं भी करता। जितना मैं रोहित को जानता हूँ, रोहित को फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बात हुई उससे? नहीं, बात नहीं हुई, इतनी छोटी बात के लिए क्या बात करनी, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो ड्यूरिंग द मैचेस डिसिप्लिन बहुत होता है कि यू स्टिल चैट विद देम, टेक्सटिंग होती रहती है कुछ? नहीं, ड्यूरिंग द मैच तो सारी फील्ड पे होते हैं। नहीं, ड्यूरिंग द मैच, आई मीन ड्यूरिंग द सीजन or the series that is going on. Like right now, or when they were in Dubai for Champions Trophy. I really don't text them that much because they are busy with their own life, and you know, everyone life, they're doing their own stuff. So जब जैसे मैं ग्राउंड पे गया तो जब मिले तो फिर वहीं से शुरुआत होती जहाँ पे छोड़ा था। तो दोस्ती की वाइब में कोई फर्क नहीं आता। जरूरी नहीं कि भाई हर वक्त टच में रहना है, लेकिन पता होता है कि जब मिलते हैं तो फिर एक प्यार हमेशा बरकरार है। Are you lonely?
Are you lonely? मैंने बहुत पढ़ा है आपके बारे में, the struggle you've had for the custody of your child. How is it, शिखर धवन? इसमें manifestation करते हो? अपने बेटे से दूर रहना, मिलते हो, मिस करते हो? Yes, absolutely. As I've told before as well, I haven't seen my son for 2 years now. I haven't spoken to him for more than a year now. But I keep on sending messages to him on the block number, and I don't let that sad feeling sinks into me, because then I'll attract sadness. So इसमें क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का ही मैं बता रहा हूँ कि ये एक एनवायरनमेंट है, तो मैं एनवायरनमेंट की एनर्जी में नहीं जा रहा, मैं अपनी एक एनर्जी अलग क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं फील करता हूँ कि मैं ऑलरेडी अपने बेटे के साथ हूँ, बातें कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ उसके साथ, और बहुत मेरा बॉन्ड स्ट्रांग है. एंड अगेन आई विल ट्रस्ट एंड सरेंडर टुवर्ड्स नेचर. व्हेन नेचर हैज टू ब्रिंग इट ही विल कम. नहीं भी आया कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, जी रहा अच्छी जिंदगी, जहाँ भी अच्छा खुश है बस. क्योंकि देखिए हमारे गुरु ने के 4 साहिबजादे शहीद हो गए, तो फिर तो हम कहाँ खड़े हैं, कहीं भी नहीं खड़े. तो यू हैव टू, इट्स ऑलवेज अ चॉइस व्हाट यू वांट टू चूज. यू वांट टू क्रेव अबाउट लाइफ, और यू वांट टू बी grateful about life and be thankful. Like I have such a amazing life where whatever I think I can go buy it, I can go anywhere, I have amazing people around me, and some things not gonna go your way, and that's fine, but that has come to make you stronger and make you wiser, rather than just crying, oh this is not there in life. It's fine. Unlucky in love once, have you moved on? Sorry? Unlucky in love once, yeah, but have you moved on? Of course I've moved on. That's life. You have to keep on moving in life, and I wasn't unlucky. It was, my choice was out of inexperience, and I've got experience now. For sure it's going to come very, very handy for me. So it was a learning curve ball for me, or moment for me, and yeah, and I had some good moments in that, I had some bad moments in that, and I'm grateful for that moment as well. And now? Now ready to love again? Ready to love again? I'm always in love. Okay, superb. You're in love with life for sure. तो है कि इश्क में जीत आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ. दिल खोल कर तो मुझे खर्च करो मेरे बच्चों, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ. Well said, पर बता तो दो कौन है? आपको सारी, अच्छा, आपको सारी बातें यही पूछनी है ना? हाँ. यही पूछनी है बिकॉज अच्छा, अब मैं क्रिकेटिंग उसमें कहता हूँ, मेरे को बाउंसर डॉज करना भी अच्छे से आता है, तो मुझे पता है बाउंसर मार रहे हो, पर मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा बाउंसर पे. इसमें क्या है, बता दो. इफ यू मूव्ड ऑन एंड यू हैव समबडी, तो मैनिफेस्टेशन है ना कि चंगी गल है, पंजाबी में कहते हैं ना चंगी गल है. समझदारों को इशारा ही काफी होता है. अच्छा, नाम तो बता दो. हाँ जी, नाम तो बता दो. नहीं, अभी मैं यहाँ पे नाम वगैरह नहीं बताऊंगा. क्यों? मेरी मर्जी. आप लोग जानना चाहते हो? हाँ जी, देखो ऑडियंस जानना चाहती है, एंड एज दे से पब्लिक हमारी बॉस है. So you guys want to know? The most beautiful girl in this room is my girlfriend. So now you can see it where she is. All right. Okay. Now, all right, cameraman. No. You stay, bhai. I'm not talking to you, my man. Don't think I'll come under pressure. Huh? देखो हमारा काम है, कैमरा हमारा औजार है. You creating a good news, masala news from that. So देखो न्यूज तो हमने करनी है ना. बिल्कुल करनी आपने है, लेकिन क्रिकेट खेलनी है, मेंटरशिप करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है. हमारा अभी न्यूज का काम है, हम न्यूज कर रहे हैं. वो बात भी ठीक है ना? और अच्छी बातें पूछ रहे हैं, कोई बुरी बात तो नहीं पूछ रहे. नहीं, बिल्कुल कोई अच्छी बुरी चीज होती नहीं है ना. हाँ, मैं भी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ आपकी तरफ. तो पॉजिटिवली बता दो, कोई शादी की डेट फिक्स हो रही है? जब मन करेगा तब कर लूंगा, क्या दिक्कत है? वो तो ठीक है, आपकी मर्जी साडी मर्जी. हाँ जी. तो लेकिन इस साल में नहीं, अभी कोई शादी की डेट नहीं हो रही, तो और अभी मैं बस मौज मस्ती में हूँ. यू आर इन योर ओन कंफर्ट जोन. यस, एब्सोल्युटली. लिविंग अ वेरी
happy, blissful life. तो ये हैप्पीनेस किस चीज की है? द न्यू प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग, द न्यू लव इन योर लाइफ. Alright. ये हैप्पीनेस किस चीज? Happiness. Okay. Happiness is an art to learn. एंड किसी भी चीज़ की नहीं, जिंदगी की है खुशी है मुझे कि मैं जिंदा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा सेहत में हूँ, शुक्रगुजार हूँ हर चीज़ का. ऑफ कोर्स लव लाइफ का, करियर लाइफ का, बिजनेस लाइफ का, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ. तो आई लव टू बी इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड, लव, एनर्जी. मैंने तो आपको बाबा शिखर धवन बुलाना आपसे. बिल्कुल है ना, बाबा जी की तरह आप यू नो फिलोसफिकल बातें कर रहे हो. अभी तो मौज मस्ती के दिन है, तो थोड़ा कुछ वो जो आप अपने रील्स बनाते हो वैसा कुछ ह्यूमरस बताओ ना. यू फाइंड ह्यूमर इन जस्ट अबाउट एवरीथिंग. सॉरी, आई सेड यू फाइंड ह्यूमर इन जस्ट अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ. सो आज मुझे बता दो कि देश की पॉलिटिकल सीन के बारे में आपकी क्या सोच है? हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और अगर आप देखें तो इंडियंस का पूरे वर्ल्ड में नाम होता है भाई कि इंडियंस की जो एक इमेज है वो इतनी अच्छी हो गई है. तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड एज इंडियन. एंड यू कैन सी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का वो ग्रो हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है. मेड इन इंडिया इतना बड़ा सोच जो है, अब यहाँ पे बिजनेसेस हैं इतने बढ़ रहे हैं. इवन इफ यू कैन सी सो मेनी न्यू स्टार्टअप्स coming up, and we can easily see that our country is growing and going to get more rich and rich. And I feel कि हम सब एज इंडियंस को ये फील करना चाहिए कि हमारा देश सोने की चिड़िया है फिर से, और मेहनत करें और सोने की चिड़िया को दोबारा बनाएं. अगर एक बारी था अभी वो चला गया तो क्या हो गया, अब दोबारा बना सकते हैं. इतना दम है हम सब में कि फिर से सोने की चिड़िया बनाएं इसे. अमेजिंग. यस, वी आर इन द राइट डायरेक्शन. एक रैपिड फायर करती हूँ आपके साथ. एक वर्ड में डिस्क्राइब करिएगा फॉलोइंग पीपल. नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी जी इज अमेजिंग लीडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स. राहुल गांधी. राहुल गांधी जी अ नाइस लीडर. नाइस लीडर. बड़ा सोचना पड़ा. बिल्कुल, सोच के भी जवाब देना होता है, जरूरी नहीं कि मैं टक टक करके चलता रहूं. अखिलेश यादव. अखिलेश यादव. अगेन दे ऑल आर लीडर्स. ही इज अ नाइस लीडर एज वेल फॉर यूपी. यस. बेस्ट क्रिकेटर जो आपका फेवरेट है? बेस्ट क्रिकेटर जो मेरा फेवरेट है, एबी डिविलियर्स. आई हैव सो मेनी, नॉट जस्ट वन. एबी डिविलियर्स, विराट, सचिन पाजी, दे ऑल आर अमेजिंग. एक पूछा था ना? एक पूछा था पर मेरे मन में 3-4 हैं तो 3-4 बता दिए. यू आर बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट. यू आर बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट. आई एम पॉलिटिकली करेक्ट. आई डोंट बिलीव इन जस्ट वन पर्सन टू बी रियली रियली गुड. आई नेवर बीन लाइक दैट. दे सब इतने अच्छे अच्छे हैं. फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर अक्षय पाजी. अक्षय पाजी. हाँ जी. एंड फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट. वेरी गुड. एंड फेवरेट सिंगर? गाने तो बड़े गाते हो आप. गाने एक गाना ही सुना दो जो फेवरेट सिंगर का है. फेवरेट सिंगर मेरे को कौन से चलते, बड़े सारे. गुरदास मान साहब हैं और पंजाबी के बहुत सारे सिंगर्स हैं. सतिंदर सरताज जी हैं, अरिजीत सिंह है, श्रेया घोषाल जी हैं. अमेजिंग वॉइस. अच्छा, तो एक गाना सुना दो अपना फेवरेट. मैं कोई सिंगर नहीं हूँ इतना, तो फिर गाते तो इतना हो अपनी रील्स पे तो बड़ा गाते हो और डांस करते हो. रील्स पे अभी मैं गा रहा था. कौन सा गाना? तो आपके लिए चलो, अब इन्होंने गाना बोला तो आपके लिए गाता हूँ फिर. तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं. Amazing. For the spirit of Shikhar Dhawan. Big round of applause, Shikhar Dhawan. You're awesome. You're fantastic. Never say you're retired because your new innings has just begun. बस new benchmarks, नए छक्के मारते रहना.
मालिक की मेहर से जरूर। और जाने से पहले एक बार अपना वो फेवरेट स्टेप जरूर करके दिखा देना, मुझे सीखना है। हाँ जी। आप करेंगे वैसा साड़ी में? मेरे से बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट I'll invite my colleagues on stage. Come on, Shikhar Dhawan is going to teach you. Hina, Meenakshi, Swati, please, can I have you up on the stage? They all gonna do it with me? Of course. I'm looking forward for it. Yes. This is Times Now for you. These are all my colleagues. Hello. Hina, Meenakshi and Swati. Come on. Come on, now Shikhar is going to teach you. मैं जज हूँ. हाँ, मैं जज हूँ, आप लोग डांस करो. मैं जज करूँगी ना कि कौन अच्छा करे. You have to, your favorite step, वो जो डांस वाला जो. नहीं, क्रिकेटिंग स्टेप नहीं, मैं डांस स्टेप कह रही. ये प्ले सम म्यूजिक गाइस. ये भाई टाइम्स नाउ का ही चला दो. स्टिंग. ओके, दैट्स द म्यूजिक. Super. Well, for being such a sport and the spirit of sportsmanship, thank you very much, Shikhar Dhawan. Thank you. Amazing, amazing to have you. And thank you, girls. Thank you for being here. A big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, Shikhar Dhawan, for being so candid and speaking from the heart.